Hello everyone, this is our last session from the chapter data frames, and in this session we will be learning about how to merge the data frames, join the data frames, as well as importing a CSV file to a pandas data frame, as well as exporting the pandas data frame as a CSV file. As we know that in our previous session, we learned about the addition of the rows or the columns, deletion, then the indexing, renaming, as well as the concatenation. Now let's begin with the today's session. Let's write a program to merge the data frames using the pandas merge function. Now merging means getting the two data frames and putting them into a one. That is, on a common, there should be a common column in order to merge them. So we have got a data frame X which we have created by using a dictionary keys pd.dataframe key. फर्स्ट कॉलम का जो हेडिंग है वो की है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं K0 1 2 3, ठीक है. सिमिलरली सेकंड कॉलम इज A0 A1 A2 A3, देन third column is B0 B1 B2 B3. In the second data frame we again take a column named key. The elements, I have taken the same elements. Then the third column is C and the fourth column is D. Now in order to merge, the precondition is there should be a common column. So here the column which is common to both of these data frame is the key. Elements may differ. Now how it behaves when elements are same and when the elements are different, we will be looking into this through the practical aspects. Now the first is merging the data frame. I'm going to create another data frame by merging these two. The name of the database is and data frame is res is equal to pd dot merge function we are going to use for this purpose. Then the first data frame comma the second data frame. The first data frame here is X, the second data frame here is Y. Then we printed this data frame which we get after merging that as print res. Now look at the output. The common column name is key. Here is the key. Again here is also another one. Now the elements under that is K0, K1, K2, K3. So K0, K1, K2, K3. ऑटोमेटिकली रो इंडेक्सिंग होगी. कॉलम इंडेक्सिंग तो कीज ले लेगा इस डिक्शनरी की लेगा. पहले कॉलम का हेडिंग, दूसरे कॉलम का हेडिंग ए लेगा, थर्ड का हेडिंग बी लेगा. वेरएस रो की हेडिंग जो होंगी, रो के जो लेवल्स होंगे वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली करेगा, बाय डिफॉल्ट करेगा. 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 तक चला, 3 तक. द थर्ड कॉलम विच विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू दिस, ये कॉमन कॉलम आ गया. इसके बेस पे थर्ड कॉलम जो ऐड होगा वो सी, फोर्थ कॉलम जो ऐड होगा वो डी. देन अंडर एवरी कॉलम क्या क्या उसके एलिमेंट्स थे वो आ जाएंगे. A0 A1 A2 A3 ये फर्स्ट डाटा फ्रेम से आ गया. सिमिलरली B0 B1 B2 B3 ये सेकंड से आ गया. C0 C1 C2 C3 ये यहाँ से आ गया. सिमिलरली D0 D1 D2 D3 ये Y डाटा फ्रेम से. ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम. नाउ लुक एट द सेकंड एग्जाम. I have taken another third data frame Z which is created. Again the common column is key, but the elements now differ. K5, K1, they may be in any order. K5, K1, K2, K6. Now while merging it will take only the common elements. Column should be same. That's the precondition. अगर कॉलम का नाम यहाँ की 1 कर दोगे तो ये नहीं चलेगा, एम्प्टी सेट दे देगा. ठीक है. यहाँ पर की कौन सी है? K5, K1, K2, K6. अब हम मर्ज किस किस को कर रहे हैं? X, Z. X के साथ किसको मर्ज कर रहे हैं? Z. तो X में कौन से एलिमेंट्स थे? जो कॉमन कॉलम था उसके अंदर एलिमेंट कौन से थे? K0, K1, K2, K3. यहाँ पर कौन से? K5, K1, K2, K6. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास आउटपुट आएगा दोनों को मर्ज करके, उसमें कॉलम कौन से रहने वाले हैं? की कॉलम तो आएगा ही आएगा. और की कॉलम के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? K1 K2, यहाँ पर भी K1 K. यहाँ K1 के अंदर कौन सा है?
ए में से A1 A2 है और B में से B1 B2। K1 K2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A1 A2 और यहाँ पर B1 B2। ठीक है, तो A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया। सिमिलरली इस वाले डाटा फ्रेम में K1 K2 से कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं? C वाले में से C1 C2 है और D वाले में से D1 D2। तो C1 C2 D1 D2 ये आ गया C कॉलम के अंदर, ये आ गया D कॉलम के अंदर, ये B और ये A। और कीज कौन सी हैं जो सिर्फ कॉमन है बोल रहे? रो की इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ज्वाइन। नाउ दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट विद अ डिफरेंस। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी करके दिखा देता हूँ। While merging, you can see if we run this code, this is the same output that it gives, which we discussed just now in the presentation. Now suppose I change the key. I take it as K on. Okay. Then you can see no common column. तो जब तक कॉमन कॉलम नहीं होगा ये नहीं देगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ कॉलम तो कॉमन कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर की से 8 दे दी, यहाँ पर की 9 दे दी। अब जो भी कॉलम हमारा कॉमन था उसमें कोई भी कॉमन कीज नहीं है इस पहले एक्स और जेड में। पहले वाले का तो आउटपुट आ गया, सेकंड वाले में क्या आउटपुट दिया आपको? एम्प्टी डाटा। विजिट क्लियर? क्योंकि हमारे पास इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। की कॉलम जो था वो कॉमन था की, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर K1 K2 K3 या K0 में से कोई भी नहीं है इनमें से, इसलिए हमारे पास क्या आ गया? डाटा फ्रेम एम्प्टी। आई होप इट इज नाउ pretty clear to you. So I'm again going to make it default. ये मर्जिंग थी हमारी। एक और थोड़ा सा इसमें देख लो कि अगर सपोज करो मर्जिंग करते हुए मैं यहाँ Z कर दूँ और इस जगह पर X कर दूँ तो आउटपुट में क्या चेंजेस हैं? नेचुरली जो Z वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले आएंगे। Z वाले में K1 K2 के अंदर क्या थे? C1 C2 और D1 D2। C1 C2 D1 D2, ये वाले तो दोनों का कॉमन ही था। कॉमन वाला तो सबसे पहले आ ही गया, ये वाला कॉमन, ठीक है, K1 K2 के ये आ गया। उसके बाद पहले Z वाले दो एलिमेंट आए, फिर आपका X वाले। अगर मैं इसी चीज को X और यहाँ पर Z कर दूं तो रिवर्स हो जाएगा। A B देन C, पहले X वाले फिर Z वाले। So now moving on to the next one. Python ये merging होगी joining. Now joining is simple one. Just we will join. For that we don't require anything in common or etc. See, in the first we have a key A, column heading is A, उसके अंदर A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 और दूसरे वाले के अंदर B0 B1 B2 B3 है, ठीक है। और हमारे पास इंडेक्सिंग क्या है? K0 K1 K2 K3, ठीक है। अब इसका भी देखना कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो जो इंडेक्सिंग है वो कॉमन नहीं होगी, प्रॉपर दोनों की मैचिंग नहीं होगी, तो इंडेक्सिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा दैट वी विल सी। यहाँ पर जो कॉलम है पहला, उसमें क्या था? फर्स्ट कॉलम शुड बी कॉमन। यहाँ ऐसी कंडीशन है, यहाँ इंडेक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ सी के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, डी के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। इंडेक्स में K0 है, K1 है, K2 है और उसके बाद आया K5। अब पहले वाले डाटा फ्रेम का नाम क्या है? लेफ्ट। मैं नाम इसका एक्स भी ले सकता हूँ, वाई भी ले सकता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि लेफ्ट और राइट ही रखना। तो लेफ्ट वाला जो डाटा फ्रेम है उसको हमने ज्वाइन किया राइट वाले के। लेफ्ट वाले को किसके साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं? राइट वाले। अब सबसे पहले तो लेफ्ट वाले के कॉलम देखने हमने कौन कौन से। लेफ्ट वाले के कॉलम है हमारे पास A B, तो लेफ्ट वाले के कॉलम है A और B।
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो उसको चारों को हमने एक इंडेक्स वैल्यू दे रखी है, K0, K1, K2, K3। तो इंडेक्स वैल्यू इसी की लेगा, K0, K1, K2, K3। ये किसकी लेगा? जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ डॉट ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा, लेफ्ट नाम रखा तो लेफ्ट आ जाएगा। डॉट ज्वाइन आगे राइट। आगे राइट में हमने क्या देखना है कि उसके अंदर कौन कौन सी जो हमारे पास आ रहे हैं, इसमें वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, वो उसके अंदर जो नहीं होगी कोरिस्पॉन्डेंट वहां पर एन आ जाएगा, नोट अ नंबर। ठीक है। अब हमारे पास एक उसमें सी था, एक उसमें डी था। ठीक है। अब K0 से कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है? C0। K1 से कोरिस्पॉन्डिंग C1 है। K2 से कोरिस्पॉन्डिंग C2 है। K3 इसमें है ही नहीं, K5 है। तो K5 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जो इंडेक्सिंग यहाँ पर है वही लेगा आउटपुट। तो K5 से कोरिस्पॉन्डिंग, K3 से कोरिस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है इसमें, तो उसकी जगह N है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है डी। डी में भी D0 है, वो K0 से कोरिस्पॉन्डिंग है। D1 K1 से कोरिस्पॉन्डिंग है, और D2 K2 से है। लेकिन K3 से रिलेटेड कोई भी नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया? N। आई होप इट्स प्रेटी क्लियर टू यू कि यहाँ पर क्या देखेगा, ये इंडेक्सिंग। अगर हम इसके साथ इसको मर्ज करते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग आउटपुट में आए। और अगर यही चीज़ रिवर्स कर दूं, राइट ज्वाइन लेफ्ट कर दूं, तो राइट वाले इसकी इंडेक्सिंग लेगा यहाँ आउटपुट में, K0, K1, K2, K5। अब उसमें K5 है नहीं, तो उसमें K5 से कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू में क्या आ जाएगा? N। और इसके कॉलम पहले देखिए, अब समझा क्या? C1 के सारे, डी के सारे, सी के सारे आ गए। उसमें ए के यहाँ पर यहाँ तक आ जाएंगे, K0, K1, K2 तक के, K0, K1, K2 तक के। लेकिन उसके बाद आगे K5 है नहीं, तो उसकी जगह क्या आ गया? Na। ठीक है। ये थी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग और मर्जिंग में आपने को बिल्कुल क्लियर रखना है कि मर्जिंग के केस में कॉमन कॉलम होना चाहिए, ज्वाइनिंग के केस में आपको आपने रो इंडेक्सिंग देखनी है कौन सी। ठीक है। लेफ्ट डॉट राइट ज्वाइन करोगे तो लेफ्ट डॉट ज्वाइन राइट नेक्स्ट वाला करोगे तो लेफ्ट वाले की रो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली चलना है। राइट डॉट ज्वाइन लेफ्ट करोगे तो आपने सेकंड वाले के रो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक है। देन कम्स आर लास्ट टॉपिक, ये आ गया आपका ज्वाइनिंग। लास्ट टॉपिक ये हम पहले भी कर चुके हैं कि CSV फाइल टू pandas डेटा फ्रेम यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV मेथड। रीड अंडरस्कोर CSV मेथड से हमने क्या करना है, इसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया pandas एज PD। एक डेटा फ्रेम का नाम लिया माई डेटा सेट। PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन था। कोई भी CSV फाइल, आपको बताया था प्रीवियस सेशंस के अंदर कि CSV फाइल कैसे क्रिएट होता, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो फाइल कैसे क्रिएट करनी, वो फाइल हमने क्रिएट की और उसको हमने सेव किया हुआ उसी डायरेक्टरी के अंदर जिस डायरेक्टरी में आपकी ये पाइथन की फाइल सेव हो रही है। ठीक है। वहाँ से इसको रीड किया, और ये वाला पहले हम वैल्यूज निकाल लेते थे इससे, एक्स की वैल्यू निकाल लो कॉलम की, फिर वाई की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आजकल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं और ये चीज़ छोड़ दो। आप माई डाटा सेट को सीधा ही प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया इम्पोर्ट। सिमिलरली एक्सपोर्ट करने के केस में आपने क्या किया, सबसे पहले 3 लिस्ट ली मैंने। फर्स्ट वाली लिस्ट का नाम रखा NME, सेकंड लिस्ट का नाम रखा DEG डिग्री के लिए, और थर्ड का नाम रख दिया स्कोर के लिए SCA। ये 3 लिस्ट थी। 3 लिस्ट को मैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स बनाऊंगा। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, DIC की। डिक्शनरी कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं? इट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। लिस्ट ये रही हमारे पास 1, 2 and 3। I am going to create a dictionary from the list of from the more than one list। तो पहली जो लिस्ट थी उसको डिक्शनरी का की के कौन सी की के नाम अंदर डाल दिया? नेम। दूसरी जो लिस्ट थी उसको डाल दिया डिग्री के अंदर। तीसरी जो लिस्ट थी उसको डाल दिया स्कोर के। तो इसका मतलब जो डिक्शनरी क्रिएट हुई उसकी कीज कौन सी हो गई? नेम, डिग्री एंड स्कोर। उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो NEME से आएंगे, NME से आएंगे, यहाँ पर DEG से आएंगे डिग्री से, और यहाँ पर SCR से आएंगे यहाँ। फिर इसी डिक्शनरी से हमने क्या कर दिया, उसको एज अ आर्गुमेंट पास किया PD डॉट डाटा फ्रेम में, और एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया DI।
ठीक है। उसके बाद इस डीएफ को किसी सीएसवी फाइल में सेव करना है, तो आप सिंपली उसी डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी जिस डायरेक्टरी में आप वर्किंग डायरेक्टरी में हो। तो आपने क्या करना है, डीएफ दैट इज डाटा फ्रेम नेम डॉट, पहले हम रीड अंडरस्कोर सीएसवी करते थे, अब हमने क्या करना है, टू अंडरस्कोर सीएसवी, मतलब कि एज अ सीएसवी फाइल वहां स्टोर हो जाए ये वाला डाटा। तो हमने क्या, उसको में आर्गुमेंट में उस जो न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है, क्योंकि ये डाटा फ्रेम को कन्वर्ट करने आ रहा है सीएसवी फाइल, तो जो भी कन्वर्ट करके आउटपुट आएगा उसको किसी फाइल में तो स्टोर करना होगा। उस फाइल का नाम यहाँ दे दिया फाइल वन डॉट सी एस बी, बाई डिफॉल्ट ये उसी डायरेक्टरी के अंदर चला जाएगा ये फाइल नाम से। लेट्स सी प्रैक्टिकली, पहले इंपोर्ट का देख लेते हैं। इंपोर्ट में सिंपल था, इंपोर्ट pandas as pd, ठीक है। माई डाटा सेट इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, फाइल हमने कोई भी जो डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई है, ई टेस्ट डॉट सी एस वी ये ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ये रही, अगर मैं इसको ओपन करूँ ये फाइल, ठीक है। इसी चीज़ को मैं डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। आप यहाँ से देख लो उसके वेरिएबल्स में, अलग अलग वेरिएबल्स में सारी वैल्यूज़ दिखाता है हर किसी की। मैं यहाँ से रन किया इसको, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, कॉलम के नीचे कॉलम नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा। ये देखिए, सीधे ये कीज इंडेक्सिंग आ गई रो की, ये कॉलम इंडेक्सिंग उसकी कीज हेडिंग बन गए कॉलम के, ठीक है। और ये ठीक है। सिमिलरली वी कैन एक्सपोर्ट आल्सो, ये तीन डिक्शनरी का एग्जांपल बताया था। यहाँ पर ई एक्स पी, जैसे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, या आउटपुट तो यहाँ नहीं देगा, लेकिन इस नाम की यहाँ फाइल बन जाएगी, ये फाइल बनी ई एक्स पी फाइल वन डॉट सी एस वी। इसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि फाइल हमारी क्रिएट हो गई या नहीं होगी, या फिर यहाँ वेरिएबल से भी चेक कर सकते हैं, इधर से वेरिएबल एक्सप्लोरर बोल, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ द डाटा फ्रेम। जो फर्स्ट पांडास के अंदर जो फर्स्ट यूनिट था उसको हमने कंप्लीट किया है, एंड वेरी सून वी विल बी मूविंग ऑन टू द next unit in this. As you already know that there may be some cut in the syllabus, but anyhow we are left with only two chapters that we will cover very soon. And this, let me remind you regarding what we have covered till date. As far as the data frames are concerned, pandas data frames and series, that is completed. Now we are left with just two chapters. ये हमने फिनिश किया इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके बाद हमने सीरीज का कंप्लीट किया, देन वी कंप्लीटेड अबाउट द मर्जिंग, कन्केटिनेशन, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ द डाटा फ्रेम्स। ये पूरा यूनिट हमारा पहला पहला जो चैप्टर है वो कवर हो गया इस यूनिट के अंदर। सेकंड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो इसमें वो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फंक्शंस हों, सबसे इजी यही रहने वाला है, ठीक है। एट द एंड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन माई एसक्यूएल डाटाबेस एंड द पांडास। तो हम इंपोर्ट करेंगे उस लाइब्रेरी को, माई एसक्यूएल की लाइब्रेरी को, उसके बाद माई एसक्यूएल की कमांड्स जो होंगी वो हम पाइथन के थ्रू चला सकते हैं, ठीक है। दैट वी विल, तो ये सेकंड चैप्टर है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड द थर्ड चैप्टर इज रिगार्डिंग द पाइप्लॉट, ठीक है, वेयर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट द वेरियस टाइप ऑफ द चार्ट्स, लाइन चार्ट, देन बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ हम डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू करेंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो ओनली लेफ्ट विद टू चैप्टर्स, may take 4 to 5 sessions, right? So take care, bye.